and greetings to one and all. Hello. Welcome to another exciting episode of the Babel Live India podcast. We are thrilled to have you with us today as we dive into the world of self learning and the power of knowledge. I'm your host, Moshmi Karmakar, and in this episode, we have three special guests Ayush, Shikhar, and Manyavat, who embodies the spirit of perseverance and self study. With no further delay, I would like the three of you to introduce yourself to our audience. I am Manya Rawat, studied from JNV Bhopal, and I am now in Indian Institute of Technology, Roorkee. My name is Ayush Yadav. I have done my schooling from JNV Vidyalaya. हेलो, I'm शिखर राजोरकर। मैंने अपना यानी जूनियर स्टडीज जैसे 5th क्लास तक संस्था पब्लिक स्कूल से की थी भोपाल में। उसके बाद मैं 6 से 12 तक के लिए JNV रातीगढ़ भोपाल गया। उसके बाद 1 साल कोचिंग की गेल उत्कर्ष में, और उसके बाद फिर अभी करंटली मैं यहाँ पे IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ। ओके, सो आपकी जो ये एकेडमिक जर्नी थी, आपकी जो एक्सपीरियंस है एंड सेल्फ स्टडी आपको सक्सेस कैसे दिलाई है, आप प्लीज उस पे थोड़ा बात कीजिए। सेल्फ स्टडी हमको मतलब मदद किया इस तरीके से, जैसे कि हम कभी भी क्लास लेते थे, कुछ भी लेते थे, उसके बाद जैसे जो भी कंसेप्ट रहते थे सेल्फ स्टडी से ही क्लियर होते थे, स्ट्रांग होते थे। उसके बाद जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना, आगे कुछ करना, उस स्टडी जरूरी रहती थी, तो हम वो ही करते थे। तो उसी के कारण हम यहाँ पे पहुंचे, एज आई थिंक, मैं यही सोचता हूँ। बाकी ये दोनों भी बताएंगे कैसे इम्पोर्टेंट रही है। आयुष, आप कैसे डिफाइन करना चाहोगे सेल्फ स्टडी को? मेरे लिए तो सेल्फ स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मैंने जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था प्रिपरेशन के लिए, वो मैं छोड़ चुका था। तो आई वॉज ऑल अलोन बाय माई सेल्फ। सो देन ओनली I took the path of self study, and that I make my own strategies how to look up for the new concept, how to approach them, how to increase my question solving skills, and all that. In self study, we have some space to try new things, so we get some new approaches also. So it is very beneficial. It teaches you the art of learning by yourself, because when you learn from some teacher or someone else, they just translate what they have understand. But when you do self study, you understand by your own self. You make your frame of mind, you build your own kind of framework to understand new things, and it helps you not just in studies but to learn new skills also. It help afterwards also. So, This is like, how do I you have have some key self benefits? Do you have some key benefits from this self study that will help you in academic growth? one benefit I think is that when you learn from some teacher or some mentor, uh, then you learn constantly. But in self study, initially the learning process is slow, because you don't know how to do new things. But afterwards, when you have completed or done some sort of things, then things are pretty much easier. You got to know new things very easier, and things are pretty much simpler for you. I might say the graph is gone always upwards when you do self study, as compared to when you are under some mentor or someone else. Okay, so Shikhar, what kept you motivated and disciplined throughout this journey? वेल, मोटिवेशन के लिए तो मेनली 3 चीजें जब देख लेते हैं मेरी लाइफ के लिए। तो पहला तो हमारे टीचर्स थे, जो मेंटर जिन्होंने हमें पढ़ाया और जो हमारे साथ मतलब कोचिंग में थे, जैसे हमारे मैनेजर। क्योंकि जब भी हमें वो 1 to 1 मेंटरिंग कर देते थे बहुत बार, जब भी हम पढ़ते रहते थे, अगर वो आते थे और उन्हें लगता था अगर कोई बच्चा थोड़ा डिप्रेस्ड है या फिर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे जाके बात करते थे। और सेकंड है कि हमारी फैमिली, मैंने जैसे ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं था कॉल करने के लिए, लेकिन हाँ, जैसे महीने में 1 बार, स्टार्टिंग में तो हफ्ते में 1 बार, तो जब हम पेरेंट्स से बात करते थे तो वहाँ से भी हमें बहुत मोटिवेशन मिलता था। और तो बाकी तो फिर आपने हमारे फ्रेंड्स थे। ओके, सो आप ये सब चीज मतलब मैनेज कैसे करते थे? क्योंकि सोशल लाइफ भी एक अलग होता है, जैसे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली को तो आपने टाइम दिया ही था,
बट इन बाकियों को कैसे आप टाइम देते थे? वेल हम जिस कोचिंग में थे यानी गेल का सुपर 100 में, वहाँ पे उनका सिस्टम ऐसा जैसे सुपर 30 में दिखाया गया था मूवी में, वहाँ का सिस्टम भी बिल्कुल वैसा था। यानी हॉस्टल में रहना था आपको, पूरी कोचिंग आपकी वहीं होती थी, टीचर्स वहाँ आते थे आपको पढ़ाने। तो हमारा बाकियों से उतना ज्यादा इंटरेक्शन था नहीं। हमारे बस ओके। यहाँ पेरेंट्स से बात होती थी। हाँ, और ये था कि थोड़ा जैसे बाहर निकल गए कुछ सामान वामान लेने के लिए, वरना बाकी जो सोशल लाइफ थी यानी इंटरनेट और सोशल मीडिया, उससे ज्यादा उतने कनेक्टेड नहीं थे। ओके। सो माने रावत, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे? टाइम मैनेजमेंट, सुबह हमारी जो क्लासें लगती थी उसके बाद ज्यादातर टाइम हमारा कोचिंग में सेल्फ स्टडी के तौर पे ही जाता था। ज्यादातर टाइम जैसे कि हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे साथ में बैठ के। उसके बाद जो डाउट रहते थे वो हम लोग आपस में ही मैनेज करते थे। मतलब साथ में ही हमारे जो स्कॉलर्स थे, बैचमेट्स, वो लोग आपस में बैठ के पढ़ते थे, डाउट सॉल्व करते थे। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की बात है तो वहाँ पे शेड्यूल था हर चीज का। जैसे कि क्लासें फिक्स थी, जिस टाइम पे होनी रहती थी, रोज की क्लासें फिक्स थी। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, क्लासों के बाद हमारा जो बाकी चीजें रहती हैं जैसे कि नहाना धोना, बाकी ब्रेकफास्ट लंच, ये सब का भी टाइम फिक्स था। उसके बाद ज्यादातर टाइम जो था वो रहता था सेल्फ स्टडी के तौर पे, जो हम लोग आपस में बैठ के साथ में करते थे ग्रुप में, या फिर कभी कभी अकेले भी किया करते थे। तो ऐसे हमारा टाइम मैनेज होता था। और कभी कभी जो हॉलीडेज रहते हैं उन पे मिलती भी थी, जैसे कि होली दिवाली फेस्टिवल। तो इतनी टफ लाइफ के बीच में कभी ऐसा हुआ है कि कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ हो या फिर सेल्फ डाउट हुआ हो कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हाँ, जैसे कि अभी हमारा ये था कि हमारी जो 11th थी वो कोरोना टाइम में निकली थी, तो मतलब हम घर पे ही या थे, या अब ऑनलाइन उतनी अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाई थी। और 12th भी आधी हमारी वहीं निकली थी। फिर जब आधी 12th में हम स्कूल पहुंचे थे जेएनवी में हॉस्टल्स के लिए, तो हमारा क्या था, मतलब 1.5 साल से हम ज्यादा फोन में लगे हुए थे। मतलब हम थोड़े डिस्ट्रैक्टेड थे, वही कह सकते हैं, तो हमारा उतना भी नहीं हो पाया। फिर जैसे ही हम कोचिंग में गए, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे नॉर्मल स्टडीज होती है 11th 12th की, और जो जेई लेवल की होती है, और ऊपर से जेई एडवांस लेवल की, उसमें बहुत डिफरेंस आता है। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना रहता, या फिर याद ही नहीं करना रहता, आपको कॉन्सेप्ट को डीप में समझना होता है। और स्टार्टिंग में तो यानी मेरे लिए तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। और फिर धीरे धीरे जब थोड़ा समझ में आने लगा, तो हमारा ये था कि हमारी कोचिंग थी 9 महीने की, और सिलेबस रहता है पूरा 11th 12th का, और थोड़ा एक्स्ट्रा, यानी 2 या 2.5 साल का सिलेबस हमें 9 महीने में कंप्लीट करना था। अब उसमें टाइम की कमी थी, तो हमें खुद भी डिसाइड करना था कि क्योंकि पूरा तो हम कवर नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें डीप में भी जाना है एंड अंडरस्टैंड करना है टॉपिक्स को, तो पूरा नहीं हो पाता 9 महीने में, तो हमें कुछ कुछ चीजें छोड़नी थी। तो अब जैसे मैथ्स टाइम टेकिंग रहती है, सबको पता है, तो फिजिक्स थोड़ी सिंपल रहती है। तो मैंने सोचा कि मैथ्स को कम टाइम दूंगा, लेकिन फिर स्टार्टिंग में ये हुआ कि मैथ्स में थोड़े मार्क्स मैंने बहुत ही कम आने लगे। तो फिर थोड़ा सा डाउट भी हुआ कि यार अगर ऐसे मैथ्स में कम आ रहे, बाकी में ठीक है, अगर मैथ्स में कट ऑफ ही नहीं निकला तो फिर क्या होगा। बिल्कुल सही है। ऐसे थोड़े थोड़े डाउट्स थे। तो आपका ऐसा कुछ पर्सनल स्टोरी हो जो कि आपका ये सेल्फ स्टडी का जो प्रैक्टिस है कुछ आपको अचीवमेंट्स लाने में हेल्प किया हो? वेल डेफिनेटली, जैसे अगर 10th तक भी देखे और 12th तक भी, तो टीचर्स रहते हैं वो क्लास में आके पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास में जैसे जेएनवी में थे, तो एक सेक्शन में 40 बच्चे रहते हैं। अब टीचर एक एक बच्चे पे ध्यान तो दे नहीं पाता स्टडीज पे, यानी जब वो पढ़ाता है, तो फिर जब क्लास के बाद हमें खुद से ही पढ़ना रहता है। अब बहुत सारे डाउट्स रह भी जाते हैं, और या तो खुद आपस में डिस्कस करो या फिर खुद ही सोचो उसे बैठ के। तो वैसे ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैंने टॉप 3 रैंक में तो आ ही जाता था मैं हर बार। और मेन बहुत तो यही है कि जेई एडवांस क्लियर हुआ, और मैं यहाँ पे अभी आईआईटी बॉम्बे में हूँ। और ये मोस्टली टीचर्स की वजह से, और सेकंड थिंग है सेल्फ स्टडी, बिना उसके मुझे नहीं लगता ये सब हो पाता। ऑफ कोर्स दैट्स एन अचीवमेंट। आयुष, मैम। ओके। सो जैसे केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स होती है, कुछ आउटकम्स आते हैं, तो क्या आपने सेल्फ स्टडी के साथ ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो जिसका कि कुछ आपको अच्छा आउटकम मिला हो?
या मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था लाइकवाइज कि व्हेन आई लेफ्ट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम एंड the course was left the course was very vast at that time, like I have to do complete around 6 to 7 chapters of thermal physics at that point in time. So I choose the strategy that I will complete the online lectures of from YouTube, and I don't have any time that I can solve any book or some reference or some coaching material. So I have gone directly to the PYQs. So I saw a video and directly do all the PYQs of last 5 years, and that really helped me very much. ओके, दैट्स ग्रेट। माने रावत, आपके जिंदगी में ऐसी कोई टीचर होंगी या फिर कोई सर होंगे जो आपको थ्रू आउट मोटिवेटेड फील कराते होंगे, एंड इस सक्सेस के जर्नी में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जी, हमारे इंस्टीट्यूट के मैथ के सर जो थे सुधांशु मिश्रा, तो वो हमें हमेशा मोटिवेट कराते रहते थे इस बात को लेके कि पढ़ो ये, मतलब उनका मोटिवेशन थोड़ा अलग टाइप का लेवल रहता था। वो इस तरीके से मोटिवेट करते थे कि जैसे कि वो अपनी स्टोरी सुनाते थे कि उन्होंने आईआईटी कैसे क्रैक किया था। सबसे पहले उन उनने जब 12th के बाद दिया था तो उनका नहीं हो पाया था, फिर 1 साल ड्रॉप लेने के बाद दिया था। तो उनको उस टाइम पे कैसा ह्यूमिलेटेड फील हुआ था, उनने हमको बताया था कि मुझे ऐसा बुरा लगा था कि फिर मैंने उस बुरा लगने के चक्कर में अच्छी खासी मेहनत करी थी उनने उस ड्रॉप ईयर में, और उनको भी आईआईटी बीएचयू इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था। तो वो हमको अपनी स्टोरी सुनाते थे। उसके बाद हमारे जो फिजिक्स सर थे वो भी अपनी आईआईटी की स्टोरी सुनाते थे, क्योंकि ऑनेस्टली हमारे जो 3 टीचर थे उसमें से 2 आईआईटीएन थे। तो वो हमको आईआईटी की लाइफ के बारे में बताते थे कि आईआईटी में ऐसी लाइफ रहती है, वहां पे हर चीज करने को मिलती है। तो हम उस आईआईटी की लाइफ से मोटिवेट रहते थे मेन। ओके, सो आयुष एंड शिखर के भी लाइफ में आई होप सो ऐसी कोई टीचर या कोई होंगी जो मोटिवेशन रही होंगी थ्रू आउट, सो वुड यू लाइक टू शेयर दैट एज वेल? आयुष एंड शिखर, आयुष आर यू देयर? आयुष तो म्यूट पे है भाई, म्यूट पे, म्यूट कर दिया आपको। Now I'm audible. यस यस, Hello. नाउ ऑडिबल। So I was telling that when I left the coaching of that private institute, I was still in touch with a physics teacher. So when I am doing my study alone, I used to ask him, since I have various choices, which book I should try, which how much PYQs I should do. So I talk to him, and whenever I talk to him, he will equally give me the best possible solutions at that time. And he really helped me because at that time I was all alone. I don't have any colleagues to discuss my problem and all that. So that teacher really helped me to pull out from that phase in my preparation. Okay, that's great. And there you have it, a truly awe-inspiring story of triumph through self-study and the unwavering spirit of Ayush, Shikhar, and Mane Rawat. We hope the journey has inspired you as much as it has inspired us. At Babel Live India, we are committed to nurturing a self-learning ecosystem that transcends boundaries and opens doors to a world of knowledge. Together, let's continue to break barriers, embrace technology, and foster a community where education is a catalyst for transformation and growth. Thank you all. Yeah.